Okay, students, welcome back. Now we are starting lesson number 4, economic development, history. Lesson number 4, economic development for 9th standard, Maharashtra board. Okay, chalo. What we studied in the last lesson was what were the internal challenges that India faced after independence. क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी इंडिया को in the way of development, on the road of development. Okay. कोई बाहर से कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, सब प्रॉब्लम इंटरनली था. दोज वर द इंटरनल चैलेंजेस. इतना बड़ा कंट्री को एक बना के रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है. कोई सेपरेट खलिस्तान डिमांड करता है, कोई सेपरेट ये डिमांड करता है, कोई सेपरेट वो डिमांड करता है. मिडिल ईस्ट का तो बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है. ओके, तो उधर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वगैरह जो भी है सब देखा आप लोगों ने. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, this lesson doesn't need much explanation because this is not related to the mistakes or the good things done in the history that you have to learn and understand something to become a better citizen. Okay, इसमें theory part more important है. That is the reason why we'll start directly with the theory. Okay, as your textbook says, we are going to study India's economic policy in this chapter. This includes the study of mixed economy, 5 years plan. Okay, and the successes, failure, nationalization of bank, 20 points program, mill worker strike, etc etc etc. जो कुछ भी economic development के बीच में जो भी story हुआ, we are going to see in short. Okay, this lesson could be boring because I know that history is a boring subject. सुनने में अक्सर बच्चों को नींद आ जाता है. Okay, but आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. इससे पहले का जो भी लेसन्स था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई ट्राइड टू बी एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल, टू मेक इट एंटरटेनिंग एज पॉसिबल. ओके, ताकि मेरे बच्चे लेक्चर के बीच में सोए नहीं. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय इंडिया. ओके, वी आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव टू डिफाइन कि हमारा इकॉनमी कौन सा रहेगा. Are we going to accept the mixed economy, a socialist economy or a capitalist economy? You might have heard about these words, capitalist, socialist, etc etc etc. In short में उसका मतलब क्या होता है? कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. ओके, first let us understand what are these sector. In public sector or the socialist economy, public sector stands for socialist economy. Okay, the other word for it is सोशलिस्ट इकॉनमी. द सेम थिंग विल बी टॉट टू यू इन इकोनॉमिक्स. आगे अगर आर्ट्स वगैरह लोगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस. इकोनॉमिक्स में आपको ये सिखाया जाएगा. एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर यू विल बी कॉलिंग इट एज सोशलिस्ट इकॉनमी. व्हाट इज द सोशलिस्ट इकॉनमी? द इंडस्ट्रीज इन एंड ऑल सच सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जितना भी रहता है बड़ा बड़ा बिजनेस, ऑल दीज थिंग्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, इन द दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर. सोशलिस्ट इकॉनमी में क्या होता है? सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास रहता है. सो दे ट्राई टू मेक प्रोडक्ट्स एंड सेल इट ऑन द चीपेस्ट रेट पॉसिबल एंड ट्राई टू सी दैट मिनिमम प्रॉफिट के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके. ओके, द नेक्स्ट इज़ द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, द नेम इट सेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ नोन एज कैपिटलिस्ट इकॉनमी. ओके, द इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स. You see Tata, Birla, Reliance, Ambani's. Okay, then you have the Munjal Group, Hero Honda का owner, etc etc. There are many business families over here, Neswadia, etc. Okay, अभी नाम लेने जाऊँगा तो बहुत सारा हो जाएगा. The Raymond's Group, Singhania, etc. Okay, so these companies are owned by the private sector. So even private, this is called private economy or the capitalist economy, where the aim of that economy is what? It is only to get maximum profit. Okay, then we have the joint sector. Joint sector is also known by the name of mixed economy. We have seen socialist economy, capitalist economy, and the third one is the mixed economy or the joint sector. In this sector, this is also known as by the name mixed economy. I have written over here. In this sector, some industries are owned by the private industrialists while some are run under the government management. बराबर. अभी देखो रिलायंस के अंदर रिलायंस पेट्रोलियम है, बट गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बराबर. सो मतलब द कंपनीज कैन बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज
बाय द प्राइवेट प्लेयर्स और द प्राइवेट कैपिटलिस्ट, जिनके पास बहुत पैसा है. ओके, so India, instead of going for a socialist economy, because at that time we couldn't have adopted the socialist economy. जनता का भला करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन सोशलिस्ट इकॉनमी, इतना सब फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था. यू नो, इंडिया जिस हालत में इंडिपेंडेंस मिला था, द कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन अ बेगर. ओके, मतलब इतना एकदम भुखमरी का कंडीशन हो गया था कि खाने को नहीं था, मर रहे थे, दवाई नहीं थी, मर रहे थे, दूध नहीं था, छोटे बच्चे मर रहे थे, इतना प्रॉब्लम्स था. ऊपर से फिर छुआछूत का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ. ओके, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम गवर्नमेंट वाज नॉट हैविंग मनी टू पुट अप इंडस्ट्री, सो दे ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकॉनमी. भैया हमारी जितनी कैपेसिटी है वो कंपनियां हम लगाएंगे. अगर टाटा, बिरला, अंबानी के पास पैसा है, उनको कंपनी लगाना है तो वो भी लगा सकते. ओके, सो दे ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकॉनमी. जिसको जो धंधा करना है अपने पैसों से कर सकता है, और मिक्स्ड इकॉनमी लिया तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट शुरू हुआ. ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी, वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए दिया गया हुआ है. बट दैट इज़ अ पार्ट मोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नॉट अबाउट हिस्ट्री. ओके, सो वील कवर इट इन शॉर्ट, जस्ट रीड इट. फॉर मिक्स्ड इकॉनमी टू रन स्मूथली, दिस इज योर पेज नंबर 15, द फर्स्ट पेज ऑफ लेसन नंबर 4. Okay, we are starting from the second part of the page. For mixed economy to run smoothly, there is a need of coordination between the private sector and the public sector. This system aims of maximization of the production and popular participation on a large scale. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both capitalist economy का और socialist system का, दोनों का भी जो अच्छा पार्ट है वो मिक्स करके मिक्स्ड इकॉनमी तैयार होता है. Okay, a mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time bound planning, etc etc, सब कुछ आ जाता है mixed economy में. That was the reason why India opted for mixed economy. Okay, in the next paragraph, a mixed economy also naturally tends to give priority to national interest. Automatically देश के लिए ही काम करना चालू कर देता है लोग, बराबर. Long term development is stressed upon with priority. Industries like defense, scientific research, education, road, railways, waterways, seaports and airport development requires huge capital investment, but the return in these areas are very late. मतलब रेलवेज अगर चालू करेगा तो इतना पैसा कौन लगाएगा और उसका रिटर्न कभी आएगा? सब इन्वेस्टमेंट कवर होते होते ही 50 साल 100 साल लग जाएगा. इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स बहुत लेट आता है. ओके, बट नाउ वी आर सीइंग दैट प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू मेट्रोज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. The Bombay Metro is owned by ADAG, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. ओके, बॉम्बे का जो ये है वो किसके अंडर में है? रिलायंस के अंडर में. बट वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकॉनमी एंड, अगर प्राइवेट ओनर के हाथ में रहेगा तो क्या हो गया, एक साल में 7 बार 8 बार किराया बढ़ाया उसने, बराबर. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ मोनो रेल विच इज़ रनिंग फ्रॉम चेंबूर टू वडाला. ओके, उसमें क्या बोलते हैं, योर टिकट फेयर वगैरह या किराया नहीं बढ़ाया है, बट वो कब चलती है कब नहीं चलती है वो अपने को भी नहीं मालूम है. ओके, गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा तो काम का ये प्रॉब्लम रहता है कि मतलब यू डोंट हैव अ फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फंक्शनिंग, तो सब टाइम टेबल बिगड़ जाता है. ओके, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, चल रही भी तो नहीं है. किराया नहीं बढ़ाया तो क्या फ़र्क पड़ता है. सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, the Indian government, they adopted a policy of giving a 5-year plan. The colonial powers have exploited India economy and the country faced severe problems like, as I said, poverty, unemployment, population growth, low standard of living, low productivity of agriculture and industries, and backwardness in the field of knowledge of science and technology. Planning was essential to solve these problems. Okay, we used to face problems like we were backward in science and technology. बराबर, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग backward था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, बराबर. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. इन इंडिया, अभी तक इंडिया का ये अचीवमेंट लोगों को मालूम नहीं, उधर अमेरिका में अगर ये जिस दिन मालूम पड़ेगा ना, उन लोगों को पूरा डिटेल में नासा वाले बेहोश हो जाएंगे. उन लोग मार्स पे जाने के लिए, जुपिटर पे जाने के लिए दे आर इन्वेस्टिंग करोड्स एंड
crores and crores of rupees in research and rockets and वगैरह वगैरह just to go there and study about the planets. बराबर. अभी उनको मालूम नहीं है हमारे इंडिया में रोड के बाजू में बैठा हुआ जो भटजी रहता है उसको भी 1000 रुपया दे दो, मंत्र पढ़ के पूरे ग्रहों की दशा और दिशा सब बदल देता है. यहाँ 1000 रुपये में बैठ के मार्स और जुपिटर वगैरह को सब जगह से हिलाया जा सकता है. ओके हमारे इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं. ये जिस दिन मालूम पड़ेगा नासा वाला लॉक कर देगा अपना कंपनी को, है कि नहीं. फिर हमारा इंडिया का अपमान नहीं करने का. वी आर नॉट बैकवर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Okay, India established the Planning Commission in 1950 with Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru as its chairman. Planning Commission adopt किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. There was no one to guide him. वो अपना दिमाग से जो उनको समझ में आया उन्होंने किया. He made a planning commission. Okay, that planning commission was given the task of preparing a 5-year development plan for India. Okay, it formulated India's 5-year plan. That includes rural and agricultural development, balanced industrialization, provision for a minimum standard of living and economic development consistent with democratic ideals. It focused on people's participation and implementation of the 5-year plan also. People का participation as well as individual development के ऊपर भी focus था. Okay, तो goals of the 5-year commission क्या है वो these are the goals. What are the goals of 5 years commission? This will come as an answer in brief. Elaborate the goals of or write down the goals of 5-year planning. Oh, what a 5-year plan. Okay. तो उसका क्या what were the fundamental principles of planning or the fundamental goals for a starting a 5-year plan. बराबर. The main reason क्या था. Okay. Though the first government was selected internally, okay, but election के थ्रू अगर गवर्नमेंट सेलेक्ट भी करना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही क्लियरली न्यू कि भैया अभी 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो भी हम लोग इलेक्शन करेगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज नो टाइम बाउंड ऑल्सो. तो अगर ये होएगा भी तो वेयर वी विल गेट एजुकेटेड पीपल टू बिकम मिनिस्टर्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जो भी MLA MP विम्पी जो भी बनाने का है उसके लिए हमको पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे, टैलेंट कहाँ मिलेगा. क्योंकि इंडिया में तो जस्ट वी गॉट फ्रीडम एंड मोर देन 80% से भी ज़्यादा लोग तो क्या थे, अंगूठा छाप थे. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, दीज वर हाईली क्वालिफाइड लॉयर्स. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दे वर ऑल लॉयर्स. बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी बाहर जाके किया था. they have done their LLB etc. from England, London. Okay, not every Indian was so very much nasib wala, okay, to get such opportunities. So more than 80% public तो अंगूठा छाप था. So at that particular time it was very much obvious कि मिनिस्टर जो आएगा चुन के वो भी अंगूठा छाप ही होगा, पढ़ा लिखा तो मिलेगा नहीं. So he made a planning commission where educated people were recruited into planning commission and they were given the task of preparing the 5-year plan कि जो भी गवर्नमेंट चुन के आएगा वो 5-year plan के अंदर उनको क्या क्या काम करना है. ओके, ये पढ़े लिखे लोग बताएंगे. वो अंगूठा छाप जो चुन के आएगा मिनिस्टर उसको सिर्फ उस प्लान के ऊपर चल के इम्प्लीमेंट करना है. ओके, सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ, दैट वाज द रीज़न व्हाई द 5-year planning commission was appointed. Okay, what was the goals read it as it is. Okay, because ये word to word ऐसा ही दिया हुआ है तुम्हारा गाइड में भी, जो मेरे पास अलग से नोट्स पड़ा है उसमें भी, everything. Okay, so you have to refer this from your textbook itself. The general goals of the economic commission, I will just read it out. This is your page number 16. textbook open रखो when you are watching my video. The general goals of the economic planning of India are as follows. Increase in the national income, bring about rapid industrialization by focusing on the basic industries, bring about an increase in the agricultural production so that country becomes self-sufficient in food grain production. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट था. वाई? बिकॉज आदमी खाएगा इंडिया तो जिएगा इंडिया. बराबर है. अभी भी ऐसा स्लोगन सुनाई देता है हमको, बट वो अलग रहता है. खाएगा इंडिया तो जाएगा इंडिया. अभी फ़िलहाल शौचालय के बारे में ये मालूम पड़ता है. ओके, यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली
by making increasing employment opportunities available, etc. Remove the inequalities in earning and wealth. ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पब्लिक या तो बहुत ज़्यादा अमीर था या तो बहुत ज़्यादा गरीब था, वो तो आज भी है. ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग. जो पॉपुलेशन बढ़ता ही चला जा रहा था उसको कंट्रोल करो फैमिली प्लानिंग से. इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी. गरीबी दूर करने का है. डेवलप सोशल सर्विसेज एंड मेक द इकॉनमी सेल्फ रिलायंट. बराबर. सो ऑल दिस प्लानिंग वॉज मेड एट द टाइम ऑफ नेहरू. लास्ट पॉइंट नंबर 10 पे देखो. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेक द इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर भारत. हिंदी में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर भारत. आज का स्लोगन नहीं है, ये स्लोगन बहुत पहले का है. ओके, अभी वापस से रिन्यू करके आ रहा है. सो व्हाट वाज द अचीवमेंट डन इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान? ये सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, विच यू हैव टू रीड इट टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैसा इंप्लीमेंट हुआ था, कौन कौन सा एरियाज़ में फोकस हुआ था, सेक्टर में फोकस हुआ था. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है. ओनली रीडिंग आउट what I am going to tell you is exactly what is written in your textbook. Okay, so rather ये 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 8, 9th 5 ईयर प्लान, अभी तक 9th 5 ईयर प्लान हो चुका है. ओके, तो इसका जो भी अचीवमेंट है दैट यू हैव टू रीड इट एज पर योर टेक्स्ट बुक. आई विल रीड इट बट इट इज़ वन एंड द सेम, सो अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो जाएगा. किसमें? just reading the book में. okay, so let's come to the point where explanation is required. The next big thing done by was nationalization of bank. okay, ये क्यों करना पड़ा? during the tenure of prime minister पंडित नेहरू and लाल बहादुर शास्त्री, banking was a monopoly of the private sector. these banks represented different industrial group. ये banks जो था अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप कंट्रोल करता था. जैसा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक, दिस वॉज द ओनर कौन था इसका? सर रतन टाटा. ओके, टाटा फैमिली इसको कंट्रोल करता था, इंपीरियल बैंक को. सिंडिकेट बैंक को कौन कंट्रोल करता था? मुंजाल फैमिली. ओके, द डायरेक्टर्स ऑफ दीज बैंक्स वर वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स. इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस द गवर्नमेंट नेशनलाइज इंपीरियल बैंक. ये बैंक्स लोग क्या करता था? जस्ट बिकॉज अभी बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप, सो ये लोग क्या करता था? ये लोग लोन्स और डेवलपमेंट के लिए जो भी लोन वोन देना है, कर्जा वर्जा देना है, दे यूज टू गिव टू ओनली बिग अमीर लोगों को लोन दिया जाता था. ओके, गरीब लोन मांगने के लिए आया तो कोई कुछ नहीं मिलता था, उसको कुछ नहीं मिलता था. आज कहाँ मिल रहा है? बराबर है. चलो, फॉरगेट अबाउट, वी आर नॉट लर्निंग अबाउट टुडे, वी आर लर्निंग अबाउट हिस्ट्री. सो विथ अ व्यू पॉइंट to control the working of the banks, it was decided to bring these banks under the government control. In order to stop this, the government nationalized the imperial bank. okay, imperial bank को government ने अपने control में ले लिया and the name was changed to State Bank of India. समझ में आया? imperial bank जो टाटा का प्रॉपर्टी था उसको ओवरटेक कर लिया गवर्नमेंट ने, अपने कंट्रोल में लेके उसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है. ओके, अब इतना ब्रांचेज, इतना नेटवर्क है इसका. आप इमेजिन करो कि मतलब कितना पैसा रहा होगा उस वक्त अपने टाटा ग्रुप के पास. ओके, ये बैंक गवर्नमेंट को देने के बाद में जो पैसा मिला वो पैसे से ही स्टार्टेड द टाटा एम्पायर. उससे पहले भी कुछ फैक्ट्रीज था उनके पास. देन ही स्टार्टेड और फैक्ट्रीज वगैरह लगा के टुडे ही इज़ वन ऑफ द टॉप, ही इज़ द टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन ऑफ इंडिया. ओके, अगर वेल्थ वाइज देखेगा तो ही इज़ हैविंग वेल्थ मोर देन अंबानी. मुकेश अंबानी इज़ नोन द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट सर रतन टाटा नंबर में नहीं आता है, कहीं भी टॉप 10 में भी नहीं आता है. वाई? दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज सर रतन टाटा इज़ अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट. उसका जितना भी इनकम है वो इनकम का 80% ही डोनेट्स 80% ऑफ हिज इनकम टू चैरिटी. ओके, ओनली 20% के अंदर अपना रहन सहन देखता है. ओके, सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ जेन्युइन पर्सन, अ रियल जेन्युइन पारसी. ओके, बैकग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म.
क्यों करना पड़ा ये? इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक वॉज एसेंशियल टू कवर द डेफिसिट इफ़ दे ऑकर वाइल इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम. अलग अलग स्कीम लगाने के टाइम पे, इम्प्लीमेंट करने के टाइम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इन केस अगर पैसा कम पड़ गया तो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पोलियो. ओके, 2 बूंद ज़िंदगी की बराबर ऐड आता है ना, तो तुम्हारे घर के इधर भी देखो लेडीज़ लोग आके बैठता रहेगा, कुछ कुछ आंटी लोग आके बैठता है, बच्चे लोग को पकड़ पकड़ के सबको बुला बुला के उन लोग पोलियो का ड्रॉप्स पिलाता है फ्री में. ओके, इसके लिए भी पैसा लगता है. लेकिन अगर वो पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं रहेगा, लेट्स से सुभाष नगर चेंबूर, यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स का रिक्वायरमेंट अराउंड समझ लो 400 बॉटल्स है. लेकिन अगर वो जो आंटी लोग आता है पोलियो डे के ऊपर, इफ़ दे आर ब्रिंगिंग ओनली 100 बॉटल्स, तो क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पैसा कम था तो कम लेकर आया. तो प्रोग्राम सक्सेस होएगा क्या? नहीं होएगा. सो दैट वाज द मेजर रीज़न. पैसे का रिक्वायरमेंट था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था. सो दे ब्रॉड बैंक्स अंडर देयर कंट्रोल, और बैंक का जो भी प्रॉफिट आता था, दैट प्रॉफिट वॉज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दी स्कीम्स. ओके, उतना गरीबी के अंदर भी दूसरा बैंक्स वगैरह को, कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल में लेके दे टुक इट फॉर द वेलफेयर. ओके, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? अभी तो जितना भी कंपनीज था गवर्नमेंट का, ओके, वो तो सब एक एक करके, अभी तो LIC भी बिक गया. फॉरगेट अबाउट दैट. चलो ये चीज़ पढ़ो पहले मेन. दिस इज़ फॉर योर नॉलेज. प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइज 14 बैंक. ये 14 बैंक का पूरा लिस्ट दिया हुआ है ऑन 19 जुलाई 1969. These include Allahabad Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Dena Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Syndicate Bank आ गया मुंजाल फैमिली का, United Bank of India, United Commercial Bank, Union Bank of India. In 1980 6 more banks were nationalized. ओके, ये सब बैंक्स जो है दे वर वर्किंग ओनली फॉर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, और उन्हीं को उनको बिजनेस में पैसा लगाते थे और उनको कर्जा देते थे. गरीबों का कोई सुनवाई नहीं था, तो इसलिए दीज वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट स्कीम. आज भी अगर आप लोग देख रहे हैं कि बैंक्स आर डूइंग पब्लिसिटी कि आओ आओ हमारे से हाउसिंग लोन लो, आओ हमारे से हाउसिंग लोन लो, एंड दे आर डूइंग एडवर्टाइजिंग फॉर देयर हाउसिंग लोन. दैट इज़ जस्ट बिकॉज Congress government at the time of Rajiv Gandhi itself they made a rule. ओके, राजीव गांधी का टाइम में ही वो रूल बना दिया था उन लोगों ने. नहीं, राजीव गांधी के टाइम पे नहीं हुआ था. दिस वो हैपेंड लेटर अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मनमोहन सिंह. वो टाइम पे PM कौन था आई डोंट रिमेंबर, बट मनमोहन सिंह वॉज द पर्सन हु revolutionized the banking sector. He was the one who defined what is banking and what is a bank account. ओके, अगर बैंक वाला तुम्हारा अकाउंट फ्रीज कर देता है या सील कर देता है, ओके, दे डोंट हैव द राइट टू डू दैट बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, बैंक्स एंड बैंक अकाउंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड नॉट द बैंक. बैंक्स आर मियर सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, बैंक क्या है? ओनली सर्विस प्रोवाइडर है. और बैंक अकाउंट जो है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक, सॉरी ऑफ द अकाउंट होल्डर. तो अगर कोई बैंक तुम्हारा अकाउंट के अंदर तुमको ऑपरेट करने नहीं दे रहा है या ये कर रहा है, ओके, यू कैन कंप्लेन डायरेक्टली टू बैंकिंग ओम्बड्समैन. उसका एड्रेस तुम्हारे पासबुक के ऊपर आगे पीछे कोई पेज में दिया रहता है, आप देख लो, नंबर्स भी रहता है, ईमेल भी है, सब कुछ है उधर. लेकिन लोगों को मालूम नहीं है. क्यों? बिकॉज हम लोग जाते हैं बैंक के अंदर, माहौल ही ऐसा रहता है कि पब्लिक पहले डरी हुई रहती है. ये काउंटर से वो काउंटर जाओ, वो काउंटर से वो काउंटर जाओ. बैंक वाला बाबू जो बात करता है वो इतना चिल्ला के बात करता है कि ऑटोमेटिकली डर लगता है. बराबर. बट एज पर द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया एज डिफाइंड बाय ऑनरेबल मिस्टर मनमोहन सिंह, इट सेज, क्या बोलता है? बिकॉज ही सेज an account, bank account is a property of the account holder and banks are mere, M-E-R-E, mere service providers. Okay, so they cannot act as owners of the particular thing. Okay, after that the whatever the profit these banks used to generate, it would come into the government treasury once they were nationalized.
Along with this, the policy of developing small industries and pharmaceutical industries has been implemented. Lal Bahadur Shastri undertook the experiment of green revolution in order to overcome the food shortage and drought. लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था हम लोग को नारा, जय जवान जय किसान. Okay, and green revolution, he started making efforts for improving agriculture and the conditions of farmer. During the tenure of Prime Minister Indira Gandhi, Congress Forum for Socialist Action, they made another group, Congress Forum of Socialist Action, a group in the Congress party inspired by socialist idea which made a demand of nationalization of commercial bank. यानी लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कर सकता है वो आइडिया देने के लिए उन लोगों ने एक अलग से ग्रुप बनाया था. दे गेव द आइडिया ऑफ नेशनलाइजिंग द कमर्शियल बैंक्स. इवन द कम्युनिस्ट पार्टी, they also supported the demand, hence that particular nationalization of the bank was done. Okay, अभी LIC बिक गया, अभी बेचने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना, तो our गवर्नमेंट विल स्टार्ट सेलिंग द बैंक्स अगेन. कि आ जाओ, स्टेट बैंक को कौन खरीदेगा, सिंडिकेट बैंक कौन खरीदेगा, चालू हो जाएगा वो भी. ओके, बिकॉज अपने को विकास चाहिए. देन come to the next point, that is 20-point program. Prime Minister Indira Gandhi started this 20-point program on 1st July. This was all related to the welfare of the people. उसका कुछ points इधर खास highlights दिया हुआ है. Land ceiling for cities and agricultural land, equal division of wealth, minimum wages for workers. Okay, ऐसा नहीं है कि एक वर्कर को काम करा दिया और काम कराने के बाद में उसको बोल दिया दिन भर काम कराया, उसके हाथ में 10 रुपये दिया, बोला जा चल ऐश कर. ऐसा नहीं है. ओके, देयर इज़ अ रूल फॉर दैट, मिनिमम वेज लॉ. एक पर्टिकुलर काम के अंदर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट, तो वहाँ पर भी एक मिनिमम वेज स्ट्रक्चर होता है. जो उधर लेबर काम कर रहा है, इवन लेबर और हेल्पर भी काम कर रहा है, तो उनका सैलरी भी पर डे 500-800 रुपीज़ ऐसा फिक्स किया गया है. रूरल सेक्टर के लिए अलग है और कम है थोड़ा, अर्बन सेक्टर के लिए ज़्यादा है. ओके, इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, पानी बचाओ, ये योजना शुरू किया था. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्री बॉन्डेड लेबर. पहला क्या होता था, देयर वाज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बॉन्डेड लेबर इन इंडिया. मतलब अगर बाप किसी सेठ के पास काम कर रहा है, ड्राइवर है, तो उसका बेटा भी उसके पास ही ड्राइवर रहेगा. उसका बेटा वापस जो पैदा होएगा वो उसी के इसके अंदर अगेन वैसा नौकर रहेगा ही रहेगा. बाउंडेड लेबर बराबर. समथिंग लाइक वो पिक्चर देखा था ना कटप्पा, हाँ वैसा सिस्टम था. ओके, इवन दैट वाज रिमूव्ड बाय दिस 20-point प्रोग्राम. प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग. जो लोग टैक्स नहीं भरता था, जो टैक्स बचाता था, चोरी करता था, टैक्स चोरी, टैक्स इवेशन मीन्स टैक्स चोरी, दैट वाज मेड एज एन इकोनॉमिक क्राइम. एंड स्मगलिंग को भी इकोनॉमिक क्राइम डिक्लेयर किया एंड दे स्टार्टेड पनिशिंग देम. इकॉनमी ठीक करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा. रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस एंड बेसिक नेसेसिटीज़, इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटी. नाउ अभी फूड का शॉर्टेज तो ऑलरेडी है, वो टाइम पे फूड का शॉर्टेज था, ख़त्म नहीं हुआ था. तो मतलब क्या है, अगर मेरे पास समझ लो 2-4 टन मेरे पास चावल है या दाल है, व्हाटएवर फूड ग्रेन्स है, ओके, मैं अपने मनमाने रेट पे नहीं बेच सकता हूँ. जो रेट डिसाइड किया है, जो मार्केट में अवेलेबल है, ओके, भले 40 रुपये वाला चावल, 40 रुपये 50 रुपये किलो वाला जो चावल चल रहा है मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो भी मैं उसको 50 में ही बेचूँगा. मैं उसको 200-500 करके नहीं बेच सकता हूँ. अगर वो करूँगा और किसी ने मेरे पे कंप्लेंट ठोक दिया तो आई विल लूज़ माई लाइसेंस ऑफ ट्रेडिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब रूल्स है इधर, लेकिन किसी को मालूम नहीं है तो कोई ध्यान नहीं देता है. बराबर. अभी लॉकडाउन हो गया, 5 रुपये का अंडा हमारे इधर का जनरल स्टोर वाला जो है वो 7 रुपये और 8 रुपये का एक अंडा बेच रहा है लॉकडाउन के अंदर. बोलता है लॉकडाउन में महंगा हो गया. मैंने उसको पूछा भी क्यों भाई, लॉकडाउन के अंदर मुर्गी ने अंडा देना बंद किया है क्या? ओके, बट वो इज़ डायरेक्टली इतना एडमेंट है, लेने का है तो लो भाई, नहीं तो मत लो. बोलता मैं महंगा खरीद के लाता है, महंगा बेचता है. ओके, उसका भी पॉइंट सही है, वो भी कहीं से लाता है. तो इसका जो भी कल्प्रिट है उसको ढूंढ के सज़ा मिलना चाहिए. बिकॉज लॉकडाउन के अंदर पीपल हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन मोमेंट टू जस्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट, विच इज़ अगेन एन एंटी नेशनल एक्टिविटी. ओके, फिर उसके बाद में देयर वर मेनी फैक्ट्रीज एंड मिल्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट.
ओके जब मिल शुरू हुआ तो मिल के अंदर फिर वापस यही होता है बराबर। अभी मिल के अंदर मिल चालू करने के बाद में मिल में काम करो, कमाओ, अपना फैमिली देखो, वैसा इतना इजी नहीं था। बिकॉज इंडिया, यू नो, इंडिया में पीपल आर वेरी करप्ट बाय द नेचर इट सेल्फ। सो व्हाट दे पीपल यूज टू डू, दे यूज टू, मतलब सैलरी कम देता था, बहुत ज़्यादा काम कराता था, संडेज़ को हॉलीडे नहीं था, देयर वाज नो वीकली ऑफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ था प्रॉब्लम। स्लोली एंड स्टडली एक एक करके वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया गया। द फर्स्ट टेक्सटाइल इशूज़ ऑफ द वर्कर, अभी इशू ऑफ द वर्कर क्या था? द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851 बाय कावसजी दावर। ओके, दिस वॉज स्टार्टेड इन शिवड़ी। द फर्स्ट मिल वॉज स्टार्टेड इन शिवड़ी। इट्स बाय द नेम स्वान मिल, स्वान, SWAN, स्वान मिल्स। ओके, लेकिन शिवड़ी में किसी को जाएगा ना तो किसी को स्वान मिल्स पूछेगा तो नहीं समझेगा, दे प्रोनाउंस इट एज स्वान मिल। ओके, तो ये पहले से लोगों ने उसका प्रोनाउंसिएशन का गलत कर दिया है, स्वान मिल्स। आज भी है वो मिल चालू है उधर आज भी। ओके, वो बना फिनिक्स मिल। फिनिक्स मिल तो बाद में बना था। फिर यू हैव दैट बिग मिल नियर दादर, दूरदर्शन के पहले जो मिल है उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत सारा मिल बनाया था। ओके, मिल्स वर स्टार्टेड इन दादर, परल, भाईखला, शिवड़ी। ओके, एक्सक्यूज देम फॉर द स्पेलिंग बिकॉज अभी स्पेलिंग्स चेंज हुआ है। पहला स्पेलिंग ऐसा ही रहता था, भाईखला, अभी भाईखला किया उसको। शिवड़ी इज़ नाउ कॉल्ड शिवरी। प्रभादेवी, वर्ली, टैंगोड, ये सब बराबर था। केम टू बी नोन एज गिरणगांव, मतलब जिथे जिथे गिरणी आहे, मिल्स आहे, त्या दोज एरियाज वर नोन एज गिरणगांव। In 1980s, the increasing unrest among workers due to the economic condition in other sectors, बराबर, क्योंकि मिल्स के अंदर क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ रहा था। नॉट इन द मिल्स बट इन द जनरली महंगाई बढ़ रहा था, लेकिन मिल मजदूरों का तनख्वाह नहीं बढ़ रहा था, पेमेंट नहीं बढ़ रहा था। ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे स्टार्टेड सेइंग पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। ओके, उस पर ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देने का, बिकॉज कैसा है, मजदूर यूनियन का मांग कभी ख़त्म ही नहीं होता है, बढ़ते ही चले जाता है। ओके, दे वर ऑल्सो गेटिंग लेसर अमाउंट ऑफ बोनस, दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज़, द अदर इंडस्ट्रीज वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज़ देन द टेक्सटाइल मिल वर्कर, बराबर है। अभी क्या हो गया था 1981 के अंदर, मिल मजदूर जो है, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ओके, दे were planning to get a Diwali bonus of 20%, which was under negotiation between the employers and the Mazdoor union. The union agreed for 8 to 17% bonus without taking the worker into confidence. मीटिंग में बैठा, जो भी फैसला हुआ, दे एग्रीड ऑन 8% to 17%। भाई जो मिल रहा है वो लेके उन लोगों ने फैसला कर दिया कि हाँ चलो मिल तो रहा है बोनस। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। वर्कर लोग को क्या लगा, नहीं हम लोग के साथ में यूनियन वालों ने चीटिंग किया है, हमारे लीडर लोग ने पैसा खाया रहेगा। ओके, वो डाउट के अंदर उन लोगों ने क्या किया,